हेलो आई एम उमेश त्रिपाठी एंड वी आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि आईटी, ई कॉमर्स, डिजिटल बिजनेसेस एंड प्लेटफॉर्म कंपनीज के रिजल्ट्स को हम कैसे एनालाइज करते हैं, व्हाट आर द की रेशियोज टू चेक व्हाइल एनालाइजिंग दीज कंपनीज एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपोनेंट्स टू एनालाइज। सो द ट्रिवियल बिजनेस मॉडल्स जो भी होते थे पहले वो बेसिकली एसेट हैवी बेस्ड होते थे, लेकिन today's modern business models have actually turned towards the digital first, wherein most of the facilities to the customers are being provided digitally. So basically IT, e-commerce, digital services are the kind of companies which are dominating today's economy. ऐसे सिनेरियो में एनालाइजिंग these businesses requires understanding of the tech driven performance मैट्रिक्स। यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ये जो बिजनेसेस हैं ये है क्या। सो आईटी कंपनीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली दे ऑफर द टेक सर्विसेज एंड कंसल्टिंग टू अदर फर्म्स। इनका जो कोर बिजनेस होता है ये टेक सर्विसेज एंड कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक इन्फोसिस या विप्रो। ई कॉमर्स कंपनीज की बात करें तो दे आर बेसिकली सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। फ्लिपकार्ट या नाइका का यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। डिजिटल बिजनेसेस की अगर हम बात करें तो दीज आर प्योरली इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज। नाउ इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज मीन्स वी आर एक्चुअली पेइंग फॉर सर्टेन सर्विसेज विच आर digital based. We don't have to go and procure or buy a certain product, but we are actually buying certain service. Like for example, हम जीरोधा का इस्तेमाल कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। This is a kind of digital service and platform services companies. Now platform services companies basically match the users प्रोवाइडर्स ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जोमेटो का एग्जांपल अगर हम ले, सो जोमेटो व्हाट इट डज इज इट एक्चुअली लिंक्स द कस्टमर्स हु आर सर्चिंग फॉर सर्टेन डाइनिंग प्रेफरेंसेस to certain restaurants, wherein this customer can actually use this platform to order food online. There are certain ratios in analyzing these kind of companies which we need to take care of. Basically there are few growth ratios which we have to understand. Revenue growth is one ratio which is common across all these kind of companies. GMV, which is gross merchandise value, an important ratio when you are analyzing ई-कॉमर्स कंपनी। नाउ ई-कॉमर्स कंपनी के केस में हमारे पास वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स सोल्ड होते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन वी एक्चुअली गेट फ्रॉम द ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। इसके साथ ही साथ देयर आर सर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। नाउ ग्रॉस मार्जिन, EBITDA margin, in case of digital business spending efficiency is very important when we analyze these sort of companies, and also LTV, which is customer lifetime value, is an important ratio to take care of. Coming to the efficiency ratios, there are basically efficiency ratios which are ratios like ROC, return on capital employed, ROE, return on equity. So most of these ratios we have already discussed in the previous videos, so here we are not repeating. इनके examples हमने already discuss किए हुए। यहाँ पे asset turnover is also an important ratio. So basically asset turnover means how efficiently company is using the capital and assets, and at the end of it there are certain user matrix ratios in certain kind of companies wherein मंथली एंड एक्टिव डेली यूजर्स कितने हैं उस प्लेटफॉर्म पे, उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है MAU एंड DAU से, एंड ARPU से हमें एवरेज रेवेन्यू पर यूजर मिलती है विच हेल्प्स अस इन असेसिंग द मोनेटाइजेशन स्ट्रेंथ। ठीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हेन वी आर एनालाइजिंग द income statement or balance sheet or the cash flow statements, which are the parts of the financial statements, we have to look at certain revenue sources, certain expense sources when it comes to the income statement. Maybe service revenue in some kind of companies, subscription in some kind of companies, or income from ads and commissions in some kind of digital platform companies. Expenses की बात करें तो जो भी टेक कॉस्ट्स होते हैं कंपनीज के लिए वो एक्सपेंसेस के अंडर में आते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट जो भी होते हैं वो एक्सपेंसेस के अंडर में आते हैं। एंड देयर आर फ्यू IT कंपनीज विच एक्चुअली शो देयर एक्सपेंसेस अंडर द R&D, सो दैट कम्स अंडर द इनकम स्टेटमेंट। इसके साथ ही साथ बैलेंस शीट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म्स। दीज आर काइंड ऑफ एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन। कैश रिजर्व्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑब्वियसली हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, फाइनेंसिंग कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन दिखती है। ठीक, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे हमें एक सर्टेन कंपनी है नाइका जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है। अब ये ई कॉमर्स कंपनी का GMV यानी कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू का यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं
32,699 के आसपास है। सो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू का जो डाटा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए फिट बैठता है, क्योंकि ये एक ई कॉमर्स कंपनी है एंड the total value of the merchandise it has is being shown in this particular data। ठीक, इसके साथ ही साथ in case of food delivery companies like Zomato, यहाँ पे gross order volume यानी कि GOV की इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है in their financial highlights, wherein you can see how the food delivery GOV has increased year on year। FY 2022 से FY 2024 तक यहाँ पे जो भी ट्रेंड रहा है उसकी इंफॉर्मेशन इन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट्स में दिखाई है। इसके साथ ही साथ अगर हम एक IT कंपनी की एनालिसिस करें इनके ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पे बिरला सॉफ्ट का आप देखिए एज ऑन 31 मार्च 2024 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है यहाँ पे इनके एसेट्स की इंफॉर्मेशन है जिसमें कि करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स हैं। इनके टोटल लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन है जिसमें कि करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन है एंड इक्विटीज की भी इंफॉर्मेशन है। सो बेसिकली जब भी हम बैलेंस शीट देखते हैं तो वहां पे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी का बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स का जो भी डाटा है मिलियंस में, दैट इज इक्विवेलेंट टू टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज विच इज 39,256 मिलियन रुपीज। ठीक, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम ध्यान दें इनके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस पे, जो कि इनकम स्टेटमेंट भी होता है, तो यहाँ पे IT कंपनी है, बिरला सॉफ्ट इज एन IT कंपनी, राइट। नाउ इट बेसिकली गेट्स इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो बेसिकली यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का इंफॉर्मेशन है अंडर द इनकम सेक्शन। इट हैज फ्यू एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, depreciation and amortization expense, and removing those expenses from the income we arrive at a profit before tax। Now including the tax we arrive at a profit for the year which is around 6,237 million rupees। ठीक है, इसके साथ ही साथ you have the information on the earning per share here as well। Basic earning per share here is around 22 rupees 54 paise and diluted earning per share is 22 rupees 25 paise। Also if you see their consolidated statement of cash flows, यानी कि इनके cash flow statement अगर हम देखें तो basically they have the information on their cash flow from operating activities। Here they have mentioned all the factors which account for cash flow from operating activities। So the net cash generated from operation activities which is under section A is 7,182 crore। इसके साथ ही साथ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यू कैन सी दे हैव परचेज्ड सम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड सम इंटैजिबल एसेट्स, दैट डाटा इज मेंशन्ड। इसके साथ ही साथ दे आर रिसीविंग सम इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक deposits। So the net cash from investing activities here turns out to be a negative number which is 6,269 million rupees, and cash from financing activities which is under section C, you can see there are buyback of equity shares, there is tax on buyback of equity shares, dividend paid। These information accounted makes to net cash in financing activities which is again a negative number which is 1,676 million rupees। So basically each digital or tech business, it has its own financial ratios that needs to be looked into। Moreover इन सभी के जो भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स होते हैं, जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स होते हैं, ये सिमिलर दिखते हैं बट देयर आर सर्टेन रेशियोज विच नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा बिजनेस मॉडल को एनालाइज करना ना भूलिए बिफोर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल्स। सो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.